Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in today's video we are going to read about light. It is the second part of this topic. In this video we are going to learn about spherical mirrors, concave and convex mirror, image formation by concave and convex mirror, and applications of concave and convex mirror. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So let's start with spherical mirrors. What are spherical mirrors? If you have a hollow glass sphere, suppose ये आपका hollow glass sphere है and you cut it into two curved pieces like this. आपने इसको two curved pieces में divide किया, cut किया, and the silver metal is deposited on the outer side. इसके outer side पे अगर आपने silver metal deposit किया या फिर जो mirror बनाते हैं वो वाला जो मटेरियल होता है उसमें एल्यूमिनियम भी यूज़ किया जाता है, तो वो अगर आप इस पर डिपॉजिट करते हो आउटर सरफेस पे, तो जो इनर सरफेस है वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, ऑफ द मिरर. सपोज आपने इसका जो इनर सरफेस है इस पे अगर आपने सिल्वर मेटल डिपॉजिट किया तो आपका ये जो आउटर सरफेस है ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अपोजिट होता है बिल्कुल जो सिल्वर मेटल से अप्लाई किया हुआ जो पार्ट होता है यानी कि साइड होता है उसके अपोजिट, ओके. तो इस तरह से जो है स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं. द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इन आइदर ऑफ द मिरर्स विल बी डिफरेंट. और दोनों ही जो मिरर्स होते हैं उसमें जो इमेजेस बनती हैं वो डिफरेंट होती है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो स्फेरिकल मिरर्स जो है they one side of that spherical mirror is deposited with the silver metal, okay. Here you can see these are the examples of this spherical mirrors. They are also known as curved mirrors. Any curved surface that is shiny and smooth, it acts like a curved mirror or spherical mirror. A spherical mirror is a mirror that has a consistent curve and a constant radius of curvature. Suppose ये एक मिरर है, ओके, कर्व्ड. तो इसका अगर हम इसको जैसे यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं तो इसका जो सेंटर है बनेगा इस स्फीयर का, वहाँ से इसके हर एक पॉइंट पे जो रेडियस है इस सर्कल का वो इक्वल होना चाहिए. मीन्स कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये इक्वल होना चाहिए, ओके. सो इट इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर. अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर मतलब एक किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट, इस तरह से भी हम उसको समझ सकते हैं. Spherical mirrors are of two types. First is concave mirror, it is also known as converging mirror, or second is convex mirror, it is also known as diverging mirror. So first we will read about the concave mirror. A spherical mirror which is polished from the outer side, outer curved side, such that its reflecting surface is towards the hollow side, and it is known as concave mirror. अब concave mirror में क्या होता है कि जो outer side है, this side is polished, ये polished होती है, and this side is reflecting surface, okay. Hollow side is reflecting surface. So this type of mirror is known as concave mirror. Why it is known as converging mirror? Because light converges at the point when it strikes and reflects back from the reflecting surface of the concave mirror. जब ये light जो है इस पे fall होती है concave mirror पे, तो यहाँ से आने के बाद ये जो रेज है ये इस तरह से कन्वर्ज होते हैं एक पॉइंट पे यहाँ, तो इस तरह से इसको जो है कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर. द नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. अ स्फेरिकल मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम होलो साइड such that reflecting surface towards the outer side is called convex mirror. Here you can see the outer surface or outer side is reflecting surface and the inner one is polished, this side is polished. A convex mirror is also known as diverging mirror as this mirror diverges light
when they strike on its reflecting surface. reflecting surface पे जब light fall होती है तो वो diverge होती है, यहाँ से ऐसे वो diverge होती है. It is not meeting after reflection, these rays are not meeting at a point. Okay, they are diverging, and that's why it is known as diverging mirror. Here you can see concave and convex mirror. So here concave mirror, this all the rays after falling on the curved surface, this is the principal axis, here they are converging. Here in the convex mirror you can see this principal axis, then here this is diverging, means they are reflected in different directions. So this is diverging action of this convex mirror. Then how these mirrors form images? Concave mirrors form small or large, both the type of images, and they may be real or virtual. Now what is real and what is virtual? In our last video we have discussed about the real and virtual images, and that was first part of our topic, what is real and what is virtual. Real images can be obtained on the screen, while virtual images cannot be obtained on the screen. Okay, real image is always inverted, while virtual image is always erect. Then convex mirror forms virtual, erect and diminished, means small sized images, irrespective of the distance between the object and the mirror. ऑब्जेक्ट जो है और जो मिरर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसके ऊपर जो डिपेंड नहीं होता है इस कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनता है उसमें, तो वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल होती है, irrespective of the distance between the object and mirror. Okay, polished and smooth curved surfaces can act as mirrors. Such mirrors are called curved mirrors. These mirrors obey the laws of reflection of light exactly the same way as the plane mirror. A spoon can be used as shining spherical mirror to see your images. आपके घर में अगर कोई नया स्पून है या फिर जिसमें हम सर्व करते हैं, बड़ा स्पून है, तो उसमें आप देख सकते हो शाइनी सरफेस पे आपको दोनों तरह की जो इमेजेस है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक स्पून जो होता है उसके दोनों साइड्स जो है वो एक तो कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है और एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है. हियर यू कैन सी स्पून का जो इनर पार्ट है, ये स्पून का इनर पार्ट है, इट इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्केव मिरर. ओके, एंड दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर. स्पून का जो बाहर का पार्ट है, आउटर सरफेस जो बाहर की तरफ कर्व्ड है, इट इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. सो दोनों में जो इमेजेस फॉर्म है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, image formation by concave and convex mirrors. So here there is one activity. What you have to do, take a mirror, that is concave mirror, hold it facing the sun. sun को face करके आपको उसको पकड़ना है. Try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. आपने भी देखा होगा कि जब हम मिरर को सन की तरफ फेस करके रखते हैं तो वहाँ से सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. ओके, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हमें एक शीट यानी कि पेपर की शीट पे उसको लेना है. Adjust the distance of paper until you get a sharp bright spot on it. और तब तक आपको एडजस्ट करना है जब तक आपको एक शार्प ब्राइट स्पॉट नहीं मिल जाए ऑन द पेपर. होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट्स. और फ्यू मिनट्स तक आपको वो मिरर और शीट बिल्कुल बिना हिलाए ऐसे ही पकड़ के रखना है. यू विल सी द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग. थोड़ी देर में आप देखोगे पेपर जो है वो जलने लगता है. द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर इज द इमेज ऑफ द सन which is real and small in size. तो जो इमेज हमें मिलती है सन की पेपर के ऊपर, तो वो इमेज होती है रियल, क्योंकि हमने उसको पेपर पे लिया है ना. तो रियल इमेजेस जो है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं. तो इट इज़ अ रियल इमेज एंड इट इज़ स्मॉल इन साइज. तो कॉन्केव मिरर्स जो है दे फॉर्म रियल और समटाइम्स दे फॉर्म virtual images also, and they may be large or small in size. Here you can see the picture of it. So here this sunlight is falling on the mirror, concave mirror, and then it is forming an image of sun on the paper. Be careful, never look directly towards the sun or its image, as it may damage your eyes.
अगर हम डायरेक्ट सन को देखते हैं तो हमारी आइज़ को वो डैमेज हो सकता है। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन द स्क्रीन और वॉल। इमेज जो होती है सन की, आप किसी स्क्रीन पे या वॉल पे लेकर उसको देख सकते हो। ये जो इमेज बनती है इसको कभी भी आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर नहीं लेना है, बिकॉज जैसे ही ये इमेज बनती है द पार्ट जो भी जिस पे भी इमेज ये बनती है वो जलने लगता है। सो बी केयरफुल। Formation of image by concave mirror. Here one activity is there. Fix the concave mirror on a stand. Concave mirror को आपको एक stand पे fix करना है. Then place it on a table. टेबल पे रखना है stand को. Paste a white paper on a cardboard sheet. एक white paper लेकर के उसको cardboard sheet पे paste करना है. And this will act as a screen. Okay. Keep a lighted candle on the table. एक lighted candle आपको टेबल पे रखनी है at a distance of about 50 cm from the mirror. मिरर से 50 cm दूर आपको ये कैंडल रखनी है. देन ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. और फिर आपको जो रिफ्लेक्टेड उसका रेज है उनको यूज़ करके आपको एक इमेज लेना है स्क्रीन पे जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. और इसके लिए आपको जो स्क्रीन है उसको थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक आपको शार्प इमेज नहीं मिल जाती. मेक श्योर दैट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर डज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द स्क्रीन. आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइट फॉल हो रही है मिरर के ऊपर और स्क्रीन के बीच में जो है कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट इमेज विल नॉट बी ऑब्टेन ऑन द पेपर शीट. ओके. नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट. इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. तो आपको जो स्क्रीन है उसको भी एडजस्ट करना है. देन कैंडल का जो प्लेस है, पोजीशन है, उसको भी चेंज करके देखना है. पहले हमने 50 सेंटीमीटर पे रखा था फ्रॉम मिरर, देन आपको उसको और क्लोज ले जाना है थोड़ा सा और फिर एकदम क्लोज. तो ऐसे 3-4 पोजीशन पे इसको आप एडजस्ट करो और फिर आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करो. सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ स्मॉल और लार्ज रियल और वर्चुअल इमेज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होगा, है ना. ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करता है कि इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी. ओके. सो डिस्टेंस मैटर्स हियर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार अवे और अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज. जब हम थोड़ा सा दूर रखते हैं मिरर से ऑब्जेक्ट को तो रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज बनती है. बट इफ़ द डिस्टेंस बिकम्स मोर, अगर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इमेज जो है धीरे धीरे साइज में छोटी होती जाती. बट इट इज़ सेम इमेज होगा बट वो साइज में छोटा होता जाएगा. रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज. तो जितना हम दूर जाएंगे उतना ही इमेज जो है वो छोटी होती जाएगी. देन थर्ड, एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर द मिरर इट फॉर्म्स लार्जर इमेज. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल मिरर के पास आएगी वैसे ही लार्ज इमेज जो है वो हमें मिलेगी. फोर्थ, एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, जब हम उस ऑब्जेक्ट को यानी कैंडल को बिल्कुल मिरर के पास लेके आएंगे इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज. तब वो एक वर्चुअल इमेज जो कि सीधी होगी, है ना, इरेक्ट होगी और बड़ी होगी, वो हमें मिलेगी मिरर में. ठीक है. तो वर्चुअल होगी तो हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, है ना. यू कैन सी दैट इमेज इन द मिरर. हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स. सो दिस इज द इमेज ऑफ द फ्लेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द मिरर. आप देख सकते हो कि ये जो मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में इतना डिस्टेंस है यहाँ पर. ओके. देन दिस इज द लार्ज इमेज एंड इट इज इन्वर्टेड, उल्टी है. देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर, जैसे जैसे अभी ये जो मिरर है और जो कैंडल है ऑब्जेक्ट, इनके बीच में डिस्टेंस कम किया है हमने. तो आप देख सकते हो कि जो स्क्रीन पे हमें इमेज मिली है इट इज़ लार्जर, ये और बड़ी होगी, है ना. देन जब हम इसको बिल्कुल पास लेके आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजेस्ट टू द मिरर, ये बिल्कुल मिरर के क्लोज है ना कैंडल, दिस टाइम वी आर गेटिंग एन वर्चुअल इमेज. ये एक वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं है ना. वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन द स्क्रीन. देन इट इज इरेक्ट, ये सीधी है एंड लार्ज साइज. ओके. सो हियर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ concave mirror. Formation of image by convex mirror.
फॉर दिस यू हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी जो हमने प्रीवियसली अभी देखी है, वही एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है, बट इट विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कॉन्केव मिरर की जगह आपको कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करना है, एंड देन यू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट, अ कॉन्वेक्स मिरर जनरली प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा इरेक्ट और स्मॉल साइज इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट फॉर्म रियल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में आप कभी भी रियल इमेज नहीं फॉर्म कर सकते हो। थर्ड, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज। इमेजेस जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, सीधी होती है यानी कि इरेक्ट होती है, और स्मॉल साइज की होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं होती। नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस और बट इज नेवर मोर देन द ऑब्जेक्ट। जब ये मिरर की तरफ हम इसको ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो इमेज जो है वो इंक्रीज होती है ना, साइज जो है इमेज की वो इंक्रीज होती है, बट वो ऑब्जेक्ट से बड़ी कभी नहीं होगी। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स। Convex mirror always forms a virtual erect and small image. Here you can see this is the object candle and this is the convex mirror. Convex mirror में आप देख सकते हो इमेज, यहाँ पर ये इमेज जो है वो वर्चुअल है बिकॉज इट इज़ नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। देन इट इज़ इरेक्ट यानी कि सीधी है और छोटी है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं टू सी द व्हीकल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। देन एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। कॉन्केव मिरर्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड टॉर्चेस। कार्स और टॉर्चेस के जो हेडलाइट्स होते हैं उनके अंदर इनको एज अ रिफ्लेक्टर्स यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट भी जो मिरर्स यूज़ करते हैं छोटे छोटे टू फोकस ऑन द टूथ, जब वो माउथ को ऑब्जर्व करते हैं टीथ के लिए, तो पर्टिकुलर टूथ उनको जब देखना होता है दे यूज़ अ स्मॉल मिरर विच इज़ अ कॉन्केव मिरर एंड इट गिव्स एनलार्ज्ड इमेज ऑफ दैट टूथ। कॉन्केव और पैराबोलिक मिरर्स जो हैं दे आर यूज्ड एज रेडिएशन कलेक्शंस इन द सोलर हीटिंग डिवाइसेस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि सोलर कुकर्स होते हैं या फिर सोलर लैंप्स होते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है। Then shaving mirrors and makeup mirrors to see large erect image of face. For this, face must be placed closest to the mirror. जो शेविंग मिरर्स होते हैं या फिर जो मेकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं मिरर्स, वो भी कॉन्केव मिरर्स होते हैं जिसमें हम लार्ज और सीधी जो इमेज होती है फेस की उसको देख सकते हैं, बट इसके लिए आपको मिरर के पास जा कर के देखना ज़रूरी है। हियर यू कैन सी द पिक्चर। तो ये एक टॉर्च है और ये है कॉन्केव सरफेस जो कि एज अ रिफ्लेक्टर इसमें काम करता है। ये टॉर्च का अंदरूनी पार्ट। देन डेंटिस्ट जो है इस तरह का मिरर यूज़ करते हैं जब वो टूथ को एग्जामिन करते हैं। देन दिस इज द सोलर कुकर। इस सोलर कुकर के अंदर यूज़ होता है कॉन्केव मिरर। ये दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ सोलर कुकर जो कि पैराबोलिक जो मिरर्स होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। Then these are the shaving mirrors and makeup mirrors. Then applications of convex mirrors. अब जो convex mirrors होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? In the shops to view what is going on in the shop and hence prevent shoplifting. Shoplifting यानी कि चोरी को प्रिवेंट करने के लिए शॉप्स में इस तरह के जो मिरर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स, जिसमें पूरे शॉप का एक अच्छा सा व्यू दिखाई देता है। Then these are also used to get the these are also used on the sharp bends of the roads. जहाँ पर sharp bends होते हैं roads के, वहाँ पर बड़े बड़े mirrors जो है वो फिक्स किए जाते हैं to see the traffic coming from the other side to avoid accidents. Accidents को avoid करने के लिए इस तरह के mirrors लगाए जाते हैं। Third, in buses so that drivers can see the passengers coming down स्टेयर्स। पैसेंजर्स जब बस से उतरते हैं या फिर चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक गेट पे मिरर होता है जो कि ड्राइवर्स उसको
उसमें जो है वो देख सकते हैं। देन नंबर 4, एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लैम्प्स, स्ट्रीट लैम्प्स में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उसमें भी, जो लाइट को डाइवर्ज करती हैं और बड़े एरिया में उसकी लाइट जो है वो जाती है, लैम्प की लाइट। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सन ग्लासेस एंड टेलीस्कोप, सन ग्लासेस और जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ किया जाता है। नंबर 6, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। वाई? जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनको रियर व्यू इमेजेस मिरर्स की तरह यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, लेकिन क्यों? बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये मिरर जब हम यूज़ करते हैं व्हीकल में तो हमें पीछे की साइड का एक बड़ा सा व्यू मिलता है ना, बड़े एरिया का व्यू हमें छोटे से मिरर में मिलता है। एंड ड्यू टू दिस अ ड्राइवर इज एबल टू सी द लार्ज एरिया ऑफ द रोड बिहाइंड हिम एंड व्हीकल्स रनिंग ऑन इट। और जो ड्राइवर है उनको उस मिरर में देखने के बाद पीछे का जो पूरा एरिया होता है वो देख सकते हैं, वहाँ का ट्रैफिक देख सकते हैं, और व्हीकल जो है पीछे से आने वाले वो भी उनको दिखाई देते हैं, और इसीलिए उनको ड्राइविंग मिरर्स भी कहते हैं। द कॉन्वेक्स मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स आर also known as driving mirrors. Here you can see, so this is the rear view mirror, that is convex mirror. This is also mirror. So these type of mirrors are fixed on the roads. Then this mirror is fixed in a shop. तो शॉप का जो बहुत सारा पार्ट जो है हम इसमें देख सकते हैं। आपने भी इसको देखा होगा जब कभी आप शॉप में गए होंगे। देन यहाँ पर ये एक बस का इनसाइड व्यू है ना, तो यहाँ से जो है बस ड्राइवर को दिखाई देता है कि पीछे बस में कौन चढ़ रहा है। देन दिस इज अगेन रियर व्यू मिरर, जिसमें पीछे से आने वाले जो व्हीकल्स है वो उनको हम देख सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं बट बड़ा सा एरिया जो है इसमें कवर हो जाता है। देन दिस इज द स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प के अंदर जो एक रिफ्लेक्टर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह उसको यूज़ किया जाता है टू स्प्रेड लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। देन सन ग्लासेस जो होते हैं और टेलीस्कोप जो होते हैं उनके अंदर भी जो कॉन्वेक्स मिरर है उनको यूज़ किया जाता है। सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. So this was the second part. In our third part of this topic, we will read about the lenses and the formation of images in different lenses and uses of lenses. So keep watching my videos. They will definitely help you in your studies, and we will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.